Good morning, everybody. So today we will discuss about the topic atmospheric refraction, dispersion, and the scattering of light. Hope you enjoyed the session of the electromagnetic waves in the previous classes. So here we are moving forward. So firstly, we will see how rainbow is formed. Rainbow is a natural phenomenon in which dispersion takes place. The cause of dispersion is that sunlight consists of seven constituent colors that have different refractive index with respect to a medium. The wavelength of each color is different that cause a difference in velocity of the corresponding light when passed from one medium to another. जैसे कि आप देखते हैं कि जैसे ही बारिश होती है, अगर उस सनलाइट्स के थ्रू समय सनलाइट प्रोमिनेंट है, बहुत ज़्यादा है, तो उससे अगर लाइट पास होगी तो वो 7 डिफरेंट कलर्स में डिवाइड हो जाती है, जिसे हम शॉर्ट में विबग्योर बोलते हैं. हर लाइट, ये जो लाइट है जो 7 कलर से बनी है, इसमें हर कलर का डिफरेंट वेवलेंथ है. एंड डिफरेंट वेवलेंथ की वजह से इनकी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने के लिए जो इनकी स्पीड है, जो इनकी वेलोसिटी है, वो अलग अलग है. इसीलिए हमारा जो मीडियम है, जो एटमॉस्फेयर है, इट इज़ अ मीडियम फॉर डेट वाइट लाइट. तो ये मीडियम की तरह काम करता है हमारा एटमॉस्फेयर. और जब ये इसके थ्रू पास होती है तो 7 डिफरेंट कलर्स में अपने वेवलेंथ के अकॉर्डिंग स्प्लिट हो जाती है. इसलिए हमें रेनबो दिखाई देता है. See, sunlight coming from this side, here, sunlight is coming in this water droplet. Different colors will go through through this refractive index. यहाँ से ये अलग अलग टाइप में डेविएट होगा, और जैसे जैसे डेविएट होगा ये अपने अपने वेवलेंथ के अकॉर्डिंग डेविएट होगा और अपने कलर को शो करेगा. ओके, समझ में आया हाउ दिस रेनबो इज फॉर्म्ड. आगे मैं बताऊंगा आपको डिस्पर्जन क्या होता है. सी, दिस एक्टिविटी यू विल परफॉर्म बाय यूजिंग दैट प्रिज्म ऑल्सो. दिस फिनोमिना कैन बी ऑब्जर्व्ड इन अ लैब एनवायरनमेंट यूजिंग अ ट्रायंगुलर ग्लास प्रिज्म. अगर आपने 12th में आई थिंक इसका एक हम लोग प्रैक्टिकल करते हैं लैब में, वो आपने किया होगा. उसमें एक प्रिज्म रखते हैं, प्रिज्म के थ्रू वाइट लाइट पास करते हैं और 7 कलर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है. तो हियर you will see it is a solid structure that having 3 rectangular and 2 triangular surface. Okay, any 2 rectangular face are the refracting surface and the third one is the base. Okay, जहाँ से आप उसे रखते हो. समझ गए? ये कुछ ऐसे होता है ना, प्रिज्म ऐसे like this you will see prism like this na. See, 1 2 3, there are 1 2 3, there are 3 rectangular face and there are 2 triangular face. 2 rectangular face and 2 at the rectangular face are the refractive index, जहाँ से ये जो खड़े हैं ये वाले, और जो बेस में रखा है वो एक हो गया. ठीक है, एंड 2 ट्रायंगुलर फेस आगे और पीछे. ओके, the angle between the 2 refracting surface and the triangular prism is denoted by A, called the angle of prism or the refractive index. Okay, when you will perform this experiment, then you will come to know how the angle also plays a most important part in deviating a light. Okay, here we will discuss about refraction first. The ray that deviates at the point of incidence due to a change in the medium. जैसे कि कोई भी मीडियम होगा, कोई भी अगर एक दूसरे मीडियम में कोई भी चीज़ जा रही है तो डिफरेंट तरीके से रिएक्ट करती है. वैसे ही रिफ्रैक्शन में जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में चली जाती है तो वहाँ रिफ्रैक्शन होता है, जिसे हम रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं. ठीक है, और जो एंगल बनाता है वो जो रे आती है इंसिडेंट रे, उसे हम इंसिडेंट एंगल बोलते हैं. जहाँ पे वो गिरती है वहाँ से ड्रॉ करते हैं नॉर्मल,
और जहाँ से वो रिफ्लेक्ट होती है उसे बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्टेड रे. ओके, द एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट रे and that of the emergent ray is called the angle of deviation and is presented by this letter. Okay, so we are talking about dispersion. Let's see what is dispersion is. The splitting of white light. This is for the white light. This is the white light. This white light is splitted into 7 constituent colors. Okay, this is called dispersion. Simple language, that this white light is called dispersion when it is divided into 7 colors. Okay, light disperses and creates a rainbow effect when it propagates and reflects it in a prism, like you are seeing in this figure. Light disperses and create a rainbow effect. Okay, the order of the color in the rainbow is popularly identified using an acronym known as WIPGYOR, where V is violet, I is indigo, B is blue, G is green, Y is yellow, O is orange, and R is red. Now we will see what is atmospheric refraction. Atmospheric refraction refers to an apparent random waving or flickering of objects due to the inconsistency in the physical condition of the refracting media such as air. ये बहुत अजीब सी इंग्लिश लिखी हुई है मैंने, लेकिन मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूँ इसे. एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन refers to the apparent random waving and flickering of object due to inconsistency in the physical condition of the refracting media such as air. ये जो हमारा एटमॉस्फेयर है, इसमें जो एयर होती है उसकी वजह से जो इनकन्सिस्टेंसी आती है एक किसी रैंडम चीज़ को देखने के लिए, उसे हम बोलते हैं एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन. साइंटिफिक टर्म में देखा जाए, जैसे कि आप अगर देखते हैं तो जो हमारा सन है, ठीक है, जब सन when the sun is just below the horizon, its rays enters atmosphere and are reflected towards the earth. The reflected rays reach the earth, making it appears as if sun has already risen above the horizon. This is apparent sunshine. Okay, next example is twinkling of stars. जो आप stars देखते हो वो चमक चमक करता रहता है, बड़ा छोटा होता रहता है. That is due to atmospheric refraction. जो लाइट आ रही है ना वो एक मीडिया के थ्रू आ रही है, वो मीडिया है एटमॉस्फेयर, और उस मीडिया में जो इनकन्सिस्टेंसी है उसकी वजह से एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन होता रहता है. ठीक है, एटमॉस्फेयर हमेशा स्टेबल नहीं रहता है, हमारा चेंज होता रहता है, उसकी वजह से ही ऐसा होता है. ओके, सो देयर आर 2 एग्जांपल्स ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, दैट इज द twinkling of stars and the sun, early rise of sun. Okay, so what is the reason for apparent sunset? I'll show you. Apparent sunset occur slightly later than the actual sunset. तो apparent sunset जो होता है वो पहले ही हो जाता है, क्योंकि जो sun है, since the light from the sun is already below the horizon, जो लाइट होती है उस सन की वो हॉरिजन के जस्ट नीचे पहले ही चली जाती है, तो हमें लाइट दिखती नहीं है. लाइट दिखती नहीं तो हमें लगता है कि सन डूब चुका है, सन सेट हो चुका है. इट रिफ्लेक्ट्स थ्रू द एटमॉस्फेयर एनेबलिंग अस टू सी द अपरेंट सनसेट इवन आफ्टर द सन हैज ऑलरेडी सेट. ओके, तो अपरेंट सनसेट अकर्स स्लाइटली लेटर देन द एक्चुअल सनसेट. ओके, now we will discuss about the scattering of light. See guys, if you are liking this session, kindly share this, suggest some suggestions and like it. Okay, कमेंट जरूर करिए, आप बताइए कहाँ कमी रह गई थी. जैसे कि लास्ट वीडियो में आपने बोला था कि वॉइस क्लियर नहीं थी कहीं कहीं, तो इस बार मैंने वॉइस पे बहुत काम किया है. सो अगर आप बताएंगे कि कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, देन वी विल rectify it. So now we will discuss about the scattering of light. Scattering of light is the deviation of light rays
from its straight path. As light propagates through the atmosphere, it travels in a straight path until it is obstructed by bits of dust or a gas molecule. सिंपल है. स्कैटरिंग ऑफ लाइट अगर मैं तुम्हें आम भाषा में बताऊं, तो अगर तुम उधर से आ रहे हो, अगर तुम कहीं से जा रहे हो और एक सीधी रोड पे जा रहे हो, सीधी रोड पे जा रहे हो और आपके पास बहुत ज़्यादा 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 पैसा है, ओके, बहुत ज़्यादा पैसा है, तो आपको सब धीरे 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 लूटते रहेंगे, ओके, धीरे धीरे लूटते रहेंगे. और फिर आप अंत में आओगे तो आपके पास सबसे कम पैसा बचेगा. तो यही चीज़ इसका उल्टा है जस्ट. ये आप फ्रीक्वेंसी अगर ले लो कि आप वहाँ से चले हो खूब सारी फ्रीक्वेंसी लेके, ठीक है, तो जो स्ट्रेट रास्ता है वो तुम समझ लो कि तुम एक लाइट का एग्जाम्पल, तुम एक लाइट हो और स्ट्रेट पाथ जो एटमॉस्फेयर है, ठीक है, और जहाँ तुम्हें जाना है वो पर्सन की आई है, ठीक है, तो वहाँ अगर तुम सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी लेके चल रहे हो तो लोग तुम्हें लूटते रहेंगे, लूटते रहेंगे, लूटते रहेंगे, लूटते रहेंगे. अंत में तुम सबसे कम फ्रीक्वेंसी लेके पहुँचोगे. और सबसे कम फ्रीक्वेंसी लेने का मतलब तुम सबसे ज़्यादा वाली वेवलेंथ लेके वहाँ पहुँचोगे, ओके. और आपकी सारी जो कम वेवलेंथ वाली चीज़ है वो सारी लूट जाएंगी, सारी बिखर जाएंगी, सारी स्कैटर हो जाएंगी. सेम गोज विद दिस. Why sky appears blue? The sky appears blue because out of the 7 colors of light, जो आप बहुत सारे पैसे लेके चले थे, सारे कलर लेके चले थे, ब्लू हैज़ अ शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, मतलब सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी, सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी को लूट लिया गया, मतलब ब्लू को क्या हो गया, लूट लिया गया. ब्लू सबसे ज़्यादा स्कैटर हो गई, स्कैटर हो रही है सबसे ज़्यादा, तो क्या हो रहा है, देयर फॉर इट एक्सपीरियंस मोर स्कैटरिंग. वो सबसे ज़्यादा फैला, सबसे ज़्यादा फैला तो वो क्या हुआ, कोई और कलर के अलावा सबसे ज़्यादा फैला तो वो हमें क्या हुआ, ब्लू दिखी, ठीक है. अभी तो दिन भर की बात है, चलता चलता आ रहा था, अभी लास्ट में तुम्हारी आंखों तक पहुंचेगा ना. अब सी स्कैटरिंग ऑफ लाइट एप्लीकेशन. Scattering of light give rise to the amazing and spectacular phenomena such as the Tyndall effect and the reddening of the sun at sunrise and sunset. See, sunrise and sunset, वही पहुंच गया, तुम्हारे तक पहुंच गया, तुम्हारे तक पहुंचा तो क्या लेके पहुंचा, रेड. इसीलिए जो रेड होता है, रेड की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है, उसकी फ्रीक्वेंसी सबसे कम होती है, तो वो तुम्हारी आंखों तक पहुंच पाती है, बाकी सारी चीज़ें स्कैटर हो जाती हैं. इसीलिए आपको सन ज़्यादातर रेड दिखता है, ठीक है. और टिंडल इफेक्ट भी उसका एक एग्जांपल है. टिंडल इफेक्ट तो आपने देखा, खिड़की से एक रे ऑफ लाइट आ रही होती है, उससे खूब सारे पार्टिकल्स दिखते हैं आपको, क्लोइडल पार्टिकल्स, उसको बोलते हैं टिंडल इफेक्ट, ओके. सी हियर आई एम डिस्क्राइबिंग व्हाई सन अपीयर्स रेड एंड सनराइज एंड सनसेट. द सन अपीयर white at noon because the light from the sun overhead would travel relatively shorter distance. अभी आपके अंदर ये आएगा ना कि चाहता जब शाम को रेड दिख रहा है तो पूरे दिन रेड दिखना चाहिए. पूरे दिन रेड इसलिए नहीं दिखता है क्योंकि जब सन चढ़ता है 12 बजे तो सन और अर्थ के बीच में सबसे मिनिमम डिस्टेंस रह जाती है, इसलिए चीज़ें स्कैटर नहीं होती, वाइट की वाइट लाइट आपके पास पहुंचती है, इसलिए वाइट. और ब्लू ब्लू थोड़ा थोड़ा दिखता है स्काई, क्योंकि ब्लू ही है सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी और शॉर्ट वेवलेंथ वाला, तो वो क्या होगा, स्कैटर हो जाएगा. थोड़ा बहुत ब्लू और सन वाइट दिखता है आपको. द लाइट फ्रॉम द सन नियर द ओरिजिन पासेस थ्रू द थिकर लेयर ऑफ एयर एंड कवर्स अ लार्ज डिस्टेंस बिफोर रीचिंग आवर आइज. जब सन सेट होने वाला था, सन राइज होने वाला था, तो वो ओरिजिन के पीछे बहुत दूर डिस्टेंस में चले जाता है, तो जो लाइट होती है उसको ज़्यादा डिस्टेंस कवर करनी पड़ती है, ज़्यादा डिस्टेंस कवर करनी पड़ती है, सब कुछ स्ट्रक्चर हो जाता है, सब कुछ लुट जाता है, और जो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ है वो हमारे आँखों तक पहुँचती है और वो है रेड, इसीलिए हमें वो रेड दिखाई देता है. होप यू अंडरस्टैंड. सेम विथ क्लाउड अपीयर वाइब. Cloud are white because their water droplets or ice crystals are enough to scatter the light to the 7 colors known is this, which combines to form white light.